کہ ہم اس خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ خدا ہمارا زور، ہماری قوت ہے، وہ نور ہے، اور ہم اس نور کے بغیر تاریکی میں رہتے ہیں، اور اس نور کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو ہم خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں جس نے ہم پر یہ رحم، یہ فضل کیا کہ آج پھر اس نے ہمیں اپنے قدموں میں آنے کا موقع بخشا تاکہ ہم مل کر اپنے خداوند کی عبادت کریں۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ میرے ساتھ جلدی سے زبور کی کتاب زبور 133 کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ بھائیوں میں سے کوئی تلاوت کر لے، 3 آیتیں ہیں اس زبور کی، اور پھر بہنوں میں سے کوئی بھی بلند آواز سے ان آیتوں کی جو ہے وہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جی، بھائیوں میں سے بلند آواز سے 133 زبور کی پہلی بلکہ 3 ہی آیتیں ہیں، کوئی بھی بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے۔ جی بھائی ڈینیل آپ پڑھ دیں۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی وہاں مل کر رہیں۔ یہ پیش قیمت تیل کی منگ ہے جو سر پر لگایا گیا تو بیٹھا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیغام کے دامن تک جا پہنچا۔ یہ ہرمون کی اوس کی مانگ ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہی خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ آمین۔ بہنوں میں سے بہن جوزفین بلند آواز سے پڑھیں گی۔ آمین۔ ہم نے کون سا زبور پڑھا ہے؟ زبور 133، اور پہلی آیت پڑھی ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے۔ کلام مقدس کو جو پڑھنے والے ہیں یا جو اپنے اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو بھائی کا الفاظ آیا ہے یہ دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے بائبل میں بہت سارے الفاظ ہیں، اے فرزندو، تو اس میں بیٹے اور بیٹے دونوں سے بات کی جاتی ہے، اور جب بائبل میں کہا جاتا ہے اے بیٹو تو تب بھی بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے بات کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر جب لکھا ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے، تو صرف بھائیوں کے لیے نہیں استعمال ہوا بلکہ اس میں ہم سب آتے ہیں، کیونکہ ہم مسیح میں کیا ہے؟ سب مسیح میں کیا ہے؟ مسیح میں سب بہن بھائی ہے۔ اور اگر ہم جسمانی طور پر بھی دیکھیں تو بھائی بہن کون ہوتے ہیں؟ پہلی بات کیا، اگر جسمانی دیکھیں بھائی بہن جو موجود ہے یہاں پر، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر پر بھی نظر کر سکتے ہیں۔ بہن بھائی کون ہوتے ہیں؟ جن کا باپ ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ان کا خونی رشتہ ہوتا ہے کہ ان کا خون جو ہے وہ ملتا ہے ایک دوسرے سے۔ اور تیسری بات کیا ہوتی ہے؟ اکثر لوگ ہمارے بہن بھائیوں کو کہیں پر دیکھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں کا بھائی لگ رہا ہے، یہ فلاں کی بہن لگ رہی ہے، اس کی شکل اس سے ملتی ہے۔ تو جب ہم مسیح یسوع میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی باتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہم سب کس کی اولاد ہے؟ خدا باپ کی۔ اور جب ہم یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو پھر یسوع کا خون ہماری زندگی میں آ جاتا ہے اور ہمارا ڈی این اے جو ہے وہ یسوع کے ڈی این اے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں یسوع کے خون کو مانتے ہیں اور پھر
यीशु के खून के बायस भी हम बहन भाई हैं। और फिर मिल कहते हैं कि इनकी आदत, इनकी आदतें, इनकी शक्ल सूरत मिलती है। और जब हम यीशु में होते हैं तो जब हर बात में हम खुदावंद यीशु का शुक्र करते हैं, हर बात में हम उसको जलाल देते हैं, हर बात हम अपने खुदावंद खुदा की, अपने मसीह यीशु की करते हैं, तो फिर हम सब एक ही बात बोलते हैं। आप भी वही बोलते हैं, आप भी उसकी मनादी करते हैं और मैं भी वही। तो इसी तरह मसीह में क्या है, हम सब बहन भाई हैं। और कलाम में बहुत खूबसूरत खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि क्या ही अच्छी बात है कि हम सब मिलकर रहें, मिलकर रहें। क्यों? दूसरी आयत में देखें जी, दूसरी आयत कोई भी पढ़े। ये उस बेशकीमत तेल की मानित है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पहलमन के दामन तक जा पहुंचा। हालेलुया। ये उस बेशकीमत तेल की मानित है जो सर पर लगाया गया, उस बेशकीमत तेल की मानित है। तो तेल से हम रूह कुद्स को तशबीह देते हैं। कलाम मुकद्दस में आप बहुत सारी जगहों पर वाक़ियात पढ़ेंगे ऐसे कि जब उनको तेल से मसा किया जाता था तो कलाम में लिखा है कि उस पर बहुत जोर से रूह कुद्स नाज़िल हुआ। और ये जो रूह कुद्स का मसा है ये बेशकीमत है, इसकी कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती। और ये तेल जो है उस बेशकीमत है, और ये तेल जो है बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया। वो तेल, वो मसा जो सर पर डाला गया था, अंडेला गया था, वो बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया। आप जानते हैं कि जब खुदा ने मूसा से कहा कि ऐ मूसा, मैंने मिस्र में अपने लोगों की चीखो पुकार सुनी है, उनके गम और दुख को देखा है, तो जा तू उनसे कलाम कर और उनको रहाई बख्श मिस्र की गुलामी से। लेकिन मूसा ने क्या कहा कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम है। वो हकलाता था, उसने कहा कि खुदा मैं तेरी आवाज ठीक तौर से उनको नहीं पहुंचा सकता। तो खुदा ने कहा हारून तेरा मुंह होगा। और यहाँ पर हारून जो है उसकी दाढ़ी का जो जिक्र किया गया है उसका मतलब है बोलने वाला। और जब वो मसा जो हमारे सर पर डाला जाता है, अंडेला जाता है, जब वही मसा हमारे मुंह से अदा होता है तो वो जिंदगियों में बरकत का काम करता है, वो जिंदगियों में भलाई का काम करता है। और वो मसा जब यहाँ पर अदा किया जा रहा है तो वही मसा मेरी दाढ़ी पर, दाढ़ी का मतलब है बोलने वाला, और वो मसा अब मुझ में से होकर जा रहा है आप तक। और जब वो आप तक पहुंचेगा तो वो मसा ना सिर्फ सर पर रहेगा बल्कि वो हमारे मुंह से होता हुआ हमारे पहरान तक पहुंच जाएगा। और पहरान कौन है? ईमानदार, कलीसिया। कलीसिया क्या है? मसीह का, मसीह का सर है। कलीसिया क्या है? मसीह जो है कलीसिया का सर है, मसीह जो है कलीसिया का सर है। और जब वो मसा जो हमें मसीह से मिलता है और जब वो कलीसिया में आ जाता है, वो लोग जो मसा किए हुए हैं और वो जो कलाम खुदा का बोलते हैं उनके वसीला से वो मसा बहता है। और वो मसा यहाँ तक काम करता है कि फिर हर एक जिंदगी को सराब करता जाता है। और फिर यही मसा जब कलीसिया से बहता है और लिखा है कि वो मसा का दरिया जो है वो बहुतों को सराब करता जाता है। और जब वो मसा का दरिया जो है कलीसिया में बहना शुरू होता है तो फिर बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, मौजूदात होते हैं, फिर जिंदगियां आजाद होती हैं और वो बहुत सारी रूहें जो है वो यीशु को कबूल करती हैं। वो मसा जो यीशु से हमें हासिल होता है रूह कुद्स के वसीला से। और जब वो हम पर अंडेला जाता है, जब हम उसे बयान करते हैं तो वो हमारे पहरान तक, वो हम में से होता हुआ कलीसिया तक और पूरी दुनिया तक फैल जाता है। और फिर खुदा का नाम जलाल पाता है। और इसके आगे हम तीसरी आयत देखेंगे।
या हरमोन की ओस की मानिंद जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है। या हरमोन की ओस की मानिंद, ओस यहाँ पर जो है वो बरकतों की निशानदेही करती है। जिस तरह ओस हर रोज पड़ती है और वो हरियाली रखती है, वो हर चीजों को हरा भरा रखती है। आप देखेंगे मैदानों में और फूलों पर हर एक चीज को सुबह की जो ओस है वो तरोताजा करती है, उनको जिंदगी बख्शती है। और ये ओस जो है ये बरकतों की निशानदेही करती है। और बरकतों का वादा खुदा ने कहाँ से किया था? सायून में से। और आज भी वो बरकत जो है उस ओस की मानिंद जारी और सारी है, क्योंकि खुदा ने वहीं से जिंदगी का वादा किया था। और हम खुदा के वादा के लोग हैं, हम उसके उस अहद के लोग हैं जिसको खुदा ने चुना है। लेकिन हम आज उस अहद को भूल चुके हैं। किस तरह? जिस तरह आप सामरी औरत को जानते हैं। सामरी औरत जब यीशु से मिली तो यीशु ने उसकी जिंदगी का हाल उसे बताया और उससे कहा तू 5 कर चुकी है और छठा जिसके साथ है वो भी तेरा नहीं है। इसी तरह कलीसिया है, वो 5 कलीसियाओं से होकर 5 इलाकों से होकर और बहुत सारी जगहों पर होकर जिनके साथ होते हैं वहां पर भी वफादार नहीं होते, वहां पर भी प्रॉब्लम होती है। कभी हमें यूथ से प्रॉब्लम है, कभी हमें पास्टरों से प्रॉब्लम है, कभी हमें जो है और किसी चीज से प्रॉब्लम है, वहां पर भी हमारा दिल नहीं लगता। इसलिए कि हम भूल चुके हैं उस अहद को कि खुदा ने हम पर वो मसा क्यों अटेला था, क्यों हम पर फजल हुआ, क्यों रहम हुआ, क्यों उसने हमें मसा किया है, ताकि हम उस मसा के दरिया को अपनी जिंदगियों से बहने दें। लेकिन वो क्यों रुक जाता है? क्योंकि हम जो उसके अहद के लोग हैं हम भूले हुए हैं कि हमारा मकाम क्या है। क्योंकि ना हम खुद कहीं ठहरते हैं ना दूसरों को ठहरने देते हैं। जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा ठहरे रहो जब तक तुम्हें रूह कुद्स का लिबास ना मिले। ठहरने का बोला था, ये नहीं भागते रहो कि कहाँ से मसा मिल रहा है, कौन सी तंजीम में ज्यादा पाकरू की नेमतें काम कर रही हैं। जहाँ पर भी हम ठहरेंगे वो मसा हमें वहीं से मिलेगा। लेकिन बात ये है कि जब हम वफादारी करेंगे, जब हम उसके हजूर में ठहरेंगे, जब हम मेहनत करेंगे तो फिर वो मसा हमारी जिंदगी से बहेगा और बहुतों को सराब करेगा। लेकिन हम उस वादे को, उस अहद को भूल चुके हैं और आज कलीसियाएं अपनी अपनी लड़ाई में, अपने अपने झगड़ों में पड़ी हुई है। इसलिए वो मसा का दरिया रुक गया है और अब उस सामरी औरत की तरह हमारी तलाश जारी है। कौन सी कलीसिया अच्छी है, कौन सा चर्च अच्छा है, कहाँ पर मुझे होना चाहिए। लेकिन हम एक मकाम पर नहीं ठहरते। जब हम एक मकाम पर ठहरेंगे, जब एक जगह पर वफादार होंगे तो फिर खुदावन ये खुदा की बरकतें ओस की माने हमारी जिंदगी से जारी और सारी होंगी। फिर वो हमारी जिंदगी से अजीब काम करेगा, फिर वो हमें अपने लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए कि जब हम ठहरेंगे उसके हजूर और उस वादा के मुताबिक जो है उसका इंतजार करेंगे तो वो पाक रूह का मसा हमारी जिंदगियों को लबरेज करेगा। ना सिर्फ हमें बल्कि बहुतों को लबरेज करेगा। हाजरा जब सहरा में भाग रही थी अपने बेटे को लेकर तो खुदा ने कहा ए हाजरा रुक जा, ठहर जा। और जब वो ठहर गई तो वहीं से खुदा ने उसके बेटे के लिए उसके लिए पानी का चश्मा बहा दिया। लेकिन जब हम भागते रहेंगे, जब तक हम किसी दौड़ में हैं कि वो क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्यों हो रहा है, हमें जब किसी से कुछ मतलब नहीं होगा और हम अपने खुदा की तरफ अपनी नजरों को रखेंगे, उसी से मांगेंगे, उसके हजूर में ठहरेंगे तो फिर वो उस चश्मे की माने हमारी जिंदगी से अपनी बरकत को जारी और सारी करेगा। फिर वो हमें इस्तेमाल करेगा, फिर वो हमारे वसीले बड़े बड़े काम करेगा, फिर वो मसा हमारे मुंह से होता हुआ ईमानदारों को, कलीसिया को उस मसा में ले लेगा और जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी।
खुदावंद आज हम सबों को इस कलाम को समझने की तौफीक बख्शे और जो कुछ हम पीछे गलतियां कर चुके हैं उनको हम दोहराते ना रहें, क्योंकि खुदा जब कलाम करता है तो वो उसका एक मकसद होता है ताकि हम भटकते ना फिरे, बल्कि उसके हजूर उसके कदमों में बैठकर उससे पूछें क्या खुदा मेरे लिए तेरी मर्जी क्या है, मुझे बता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी तेरे नाम की है और अब मैं चाहती हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, क्योंकि मैं तेरे इस खेत में काम करना चाहता हूँ। मेरे वसीला से जो काम तू करना चाहता है मुझ पर जाहिर कर। और जब हम अपने असातिज़ा के, अपने लीडर्स के जो हमें सिखाते हैं उनके ताबे होते हैं तो यकीन जाने कि फिर हम बरकत से लबरेज होते हैं। लेकिन जो लोग हम पर, मैं कहती हूँ मुबारक है वो लोग जिन पे कोई मेहनत करने वाला है, वरना बहुत सारे लोग तरस रहे हैं कि उनको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता जो उनके साथ दवा के लिए वक्त गुजारे, उनको ऐसे लोग प्रोवाइड नहीं होते जो उनको कलाम की तालीम दे। और एक वक्त आने वाला है, ये कलाम उठ जाएगा और लिखा है कि फिर लोग पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे कि कहीं से कलाम मिल जाए, कोई सुनाने वाला मिल जाए, लेकिन वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप पर गौर करें कि आज मैं किस मकाम पर हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी अब भी डिस्टर्ब है, अब भी मैं और जगहों और चीज़ों की तलाश में हूँ, या अपने यीशु के कदमों में ठहर गया हूँ कि अब जो तू चाहता है मेरी ज़िंदगी में काम कर, क्योंकि मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं तेरे नाम को जलाल देना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद